Why is Israel with war with Lebanon? And who is Hassan Nasrallah? And what is the situation in Hezbollah? Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. So हमारा इंस्टीट्यूट अराउंड 20 ईयर्स से सेम फील्ड में काम कर रहा है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स कोचिंग फॉर UPSC, PCS and other competitive exams. Today's topic becomes very important for current affairs issue as it is important for every government exam, whether it be UPSC or any other state level exams. Israel and लेबनान का जो इशू चल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस नाउ. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आर इशूज़ टू. सबसे पहले we'll try to understand the background of the news, that is the Israel suffers 8 casualties in Lebanon operation. Okay, when we talk about Israel and Lebanon war, it starts with basically the man who is behind all the conflict, that is Hassan Nasrallah. Okay, he is the man who lives in South Lebanon, Bint Jabal में. ठीक है, and many countries like US, UK and many other major nations उन्होंने हसन नसरुल्लाह को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है. ओके, तो वी आर गिविंग अ बैकग्राउंड चेक टू द करंट न्यूज़. ये की न्यूज़ अभी जो रिसेंट में चल रही है वो क्यों हो रही है. ठीक है, एंड जो हसन नसरुल्लाह है, ही इज़ द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ. एंड जो शिया ग्रुप है वहाँ के, दे सी हिम एज अ रिलीजियस लीडर ऑल्सो. इज़राइल सबसे बड़ा एनिमी हो जाता है ऑफ लेबनान बिकॉज ऑफ दिस मैन हसन नसरुल्लाह. ओके, देन वी टॉक अबाउट कि इनका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था. सो बेसिकली ये स्टार्ट होता है जब बेसिकली नसरुल्लाह ने बोला और टू द इज़राइल दैट दे आर जस्ट वीक स्पाइडर्स वेब. ठीक है, दे आर नथिंग, दे आर एनिमीज बट वेरी वीक. ठीक है, इन रिटेलिएशन टू दिस ऑन 26 September 2023 Israel did an airstrike on Beirut and Lebanon areas claiming that Hassan Nasrallah has been dead. ठीक है, and after few hours of their checking and the Lebanon official statement, it came out that yes, Hassan Nasrallah has been dead and he is claimed to be a very big terrorist by various nations like UK, US, etc. Okay, but when we talk about that man, what was he basically doing? So that man was covering the area from many a long time back. Okay, and उसके इफ़ेक्ट्स हमने इंडिया में भी देखे हैं. एंड द पीपल इन लेबनान who were supporters of the man started doing rallies, starting going against the nation Israel को. they started deteriorating their position and questioning the authorities कि why did this happen. Okay, so in 2000 what happened that this statement was given by the Hezbollah, in which after which the Israelis have to Israeli forces have to go back. ठीक है, and he was covering the major area of Hezbollah. ठीक है, लेबनान का एक पार्ट है and that comes in बेसिक जो गाज़ा और गाज़ा स्ट्रिप का जो इशू चल रहा था बहुत टाइम से, उसका इसने फ़ायदा उठाया इस इंसान ने एंड ही स्टार्टेड अटैकिंग Israel. ठीक है, तो Hezbollah in 2023 he attacked Israel with around 60 rockets. ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हुई थी, affecting not only the forces but also the local people. So in retaliation to this, Operation Northern Arrows was started against the Lebanon Hezbollah, that is leader. Okay, and due to which the airstrike was done and he was claimed to be dead. and इसके इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिले, एज इन वी कैन सी जो जम्मू का अभी हम इलेक्शंस वाला टाइम देख रहे थे. सो महबूबा मुफ्ती, शी डिड अ ट्वीट एंड सेड दैट हिजबुल्लाह का जो लीडर है हमारा हसन नसरुल्लाह, ही
शी क्लेम्ड हिम एज अ मार्टियर. कैसे? टेररिस्ट है वो इंसान, एंड शी वॉज क्लेमिंग हिम एज अ मार्टियर इन हर ट्वीट. एंड दिस shows how the जम्मू पॉलिटिक्स इज टेकिंग प्लेस. कैसे वो बेसिकली, क्योंकि वो एक शिया ग्रुप का रिलीजियस एक लीडर माना जाता है, सो शी स्टार्टिंग टेकिंग इट एज हर support in the election, basically we can say. Okay, so this is why this news becomes important. ठीक है, कि इसराइल और जो लेबनान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन चल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन बेसिकली. ओके, नाउ कमिंग टू द न्यूज़ क्लिपिंग. ठीक है, तो हमने देखा कि इसराइल सफ़र्स 8 कैजुअल्टी इन लेबनान ऑपरेशन. जो अभी ये बेसिकली इनका पूरा इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चल रहा है अगेंस्ट द हिजबुल्लाह ग्रुप. ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, he also said in a statement that our enemies thought we are as weak as spider's web but our veins are made of steel. ओके, तो उन्होंने रिटेलिएशन में बोला है अकॉर्डिंग टू दिस अटैक what they did, Israel did. Okay, and he also says that Iran will pay for its big mistake of firing missiles at Israel. ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने पहले किया था उसके रिटेलिएशन में अब उन्होंने ये किया है. एंड यूएस प्रेसिडेंट बिडेन अर्जेस इजराइल टू एक्ट प्रोपोर्शनली. और यूएस ने भी अपना हाथ थोड़ा इस टाइम पे पीछे कर दिया है, बट कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो हर नेशन देता ही है. एज वी कैन सी पीएम मोदी ने भी इसमें स्टेटमेंट दी है. अदर नेशंस हैव आल्सो गिवन सम स्टेटमेंट अबाउट दिस इशू बिकॉज इट कैन रिटेलिएट इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3 अगर ये इशू राइज अप होता है, क्योंकि अभी सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हुए हैं. अगर ये न्यूक्लियर वॉर में या किसी और वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट विल क्रिएट अ मेजर डिस्टर्बेंस फॉर ऑल द नेशंस. ठीक है, क्राइसिस आ जाएगी ड्यू टू सिक्योरिटी इशूज. ओके, Israel ground incursion into Lebanon escalated tension in West Asia, leading to death of 8 Israeli soldiers. तो अभी जो लेबनान इसराइल का जो चल रहा है, तो इसराइल के सोल्जर्स वहाँ पे एक बोल सकते हैं ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं. जैसे अभी मैंने बताया था ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस जो कि बेसिकली चल रहा है, तो उसके चलते हुए 8 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है. एंड द कॉन्फ्लिक्ट वॉज ट्रिगर्ड बाय ईरान्स मिसाइल अटैक ऑन इसराइल. ठीक है, prompting retaliatory threats. The situation in Lebanon worsened with rising casualties and mass displacement. तो ये जो हमारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस करके जा रहा है, इसकी वजह से लेबनान का जो सिचुएशन है ये बहुत वर्सन अप हो गई है. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसराइल का क्या ग्राउंड इनकर्शन है. तो इसराइल लॉन्च अ ग्राउंड इनकर्शन इनटू लेबनान टू बैटल हिजबुल्लाह, लीविंग 8 सोल्जर्स डेड. 7 सोल्जर्स अलग 2 सेपरेट अटैक में डेड हुए हैं. एंड अर्लियर एक 22 साल के कैप्टन की भी डेथ हो गई है. एंड इट केम ऑन द ईव ऑफ रोश हशना द जूइश न्यू ईयर. तो ये सब जो इवेंट हुआ है, ये जूइश न्यू ईयर जो उनका बनाया जाता है उस पर हुआ है. अब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया है. इट इज़ द लार्जेस्ट अटैक ऑन इसराइल टारगेटिंग 3 इजरायली मिलिट्री बेसिस. तो उन्होंने ईरान ने किसको अटैक किया है? इसराइल के मिलिट्री बेस को. ठीक है, इसराइल एयर डिफेंस सपोर्टेड बाय यूएस डिफेंस कोलिशन इंटरसेप्टेड मोस्ट ऑफ द मिसाइल. और ऐसे बोल सकते हैं कि यूएस का भी इसमें हाथ है, क्योंकि यूएस के डिफेंसिव टेक्निक्स या फिर वेपन्स का मिसाइल्स का इसमें यूज़ हुआ है. इसराइल के पीएम नेतन्याहू कॉल्ड ईरान्स अटैक अ बिग मिस्टेक एंड वोड रिटेलिएशन, एंड दे हैव क्लेम कि दे विल रिटेलिएट टू दिस अटैक. Iran's president Pezeshkian stated the attack was over unless further provoked, warning of stronger response. That if the attack was they have अगर they will do response it अगर उनको provoke किया जाएगा तो. ठीक है, तो अगर आप इसको अब इसके आप रिटेलिएशन में कुछ अटैक करते हैं तो उससे बड़ा आपको प्रोवोकेशन में कोई अटैक मिलेगा. Hezbollah claimed to have repelled an Israeli infiltration into the Lebanon, destroying 3 Merkava tanks. और हेजबुल्ला ने ये भी बोला है कि इसराइल वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है. ओके, एंड
बहुत सारे रेजिडेंट्स जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया गया है अराउंड 20 एरिया से। अब यूएस की क्या पोजीशन बन जाती है, क्योंकि यूएस यू कैन से कि एक सुपर पावर के तौर पे बैठा हुआ है पूरे सिचुएशन में। ओके, US President Joe Biden announced more sanctions on Iran but opposed an Israeli attacks on Iran nuclear facility। तो सैंक्शंस की बात करी गई है ईरान पे, बट उन्होंने इसराइल के अटैक को ईरान पे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बोला है कि उसको अपोज किया जाए। एंड बिडेन ने एम्फोसाइज किया है इसराइल को टू रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनली, मतलब देखभाल के चीज़ों को उसको रिस्पॉन्स किया जाए, जिससे कि वरना इसके जो डिस्कशंस होंगे वो G7 नेशंस में किए जाएंगे, जिसका वो भी पार्ट है। अब इंडिया का क्या रोल हो जाता है इस पूरी न्यूज़ पे। इंडिया कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट। इंडिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन वेस्ट एशिया फॉलोइंग ईरान मिसाइल स्ट्राइक ऑन टेल अवीव। ठीक है, तो इंडिया ने भी क्राइसिस, जो इमर्जिंग क्राइसिस है उस पर एक दुख, अपना डीप कंसर्न दिखाया है बेसिकली। ठीक है, एंड उन्होंने एक अर्ज करा है लोगों से, मतलब बोल सकते हैं एक रिक्वेस्ट करी है जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग इनटू अ वाइडर रीजनल क्राइसिस। ठीक है, ना इसको बढ़ावा ना देने की, इसको एक क्राइसिस ना बनाने की उन्होंने रिक्वेस्ट करी है इंडिया के लीडर्स ने, एंड कॉलिंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन, कि कैसे हम पीसफुल वे से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरी सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये वॉर बहुत दिनों से चल रही है, बहुत दिनों का कॉन्फ्लिक्ट है, एक दिन का नहीं है। अभी तक जो स्टेटमेंट आई है उसमें 1900 पीपल हैव बीन किल्ड। आई थिंक दिस नंबर्स आर लेस, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ज़्यादा ही आते हैं नंबर्स। ठीक है, 9000 wounded in Lebanon and nearly across the border fighting। ठीक है, एंड more than 1 million people have been displaced in the past 2 weeks। और एक मिलियन से ज़्यादा लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे भेजा जा चुका है 2 वीक्स के अंदर। ओके, so that's all for this news about the Iran, Iraq and Lebanon fight and conflict। Okay, this topic becomes very important due to करंट सिनेरियो को देखते हुए, और इसका जो इम्पैक्ट चल रहा है, प्लस इसका बैकग्राउंड गाजा स्ट्रिप से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये पूरा इशू, एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द पोजिशनिंग ऑन द मैप्स, क्योंकि कई बार मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑफ दिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो जीएस पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, करंट के उससे हो जाता है, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से इसका बैकग्राउंड चेक है, उस पर भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, I hope you are understanding the topic, and we'll meet soon with another more topics। Okay, I hope to see you soon। Bye bye, take care, thank you for watching the video, and please do like, share and subscribe our channel।